اسلام کی تاریخ کا آغاز صرف ایک شہر سے نہیں بلکہ ایک پوری سرزمین سے ہوا تھا۔ عرب کا خطہ زیادہ تر ریگستانی تھا، جہاں پانی کم اور زندگی سخت تھی۔ اونٹ اور تجارت ہی ان کا سہارا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں نہ تو کوئی دریا تھا، نہ ہی سرسبز میدان تھے، نہ ہی کوئی وافر پانی کا بندوبست تھا، مگر ایک چیز بہت تھی۔ گرم علاقہ، خشک آب و ہوا، بے آب و گیا صحرا، بیاباں، جنگل، گرمی اور سورج کی تیز دھوپ کے ساتھ گرم لو بھی جلتی تھی۔ یہی سرزمین عرب تھی جہاں مکہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی موجود تھا۔ اور یہی وہ سرزمین تھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس سرزمین سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں اللہ کے نبی ہجرت فرما کر آئے ہیں، جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست یہیں پر قائم کی گئی اور اس اسلامی ریاست کا پہلا دارالحکومت یہی مدینہ شہر تھا۔ یہ جو عربین پیننسیولا ہے یعنی جزیرہ نما عرب، یہی وہ خطہ تھا جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں وحی نازل ہوئی تھی۔ جزیرہ نما عرب، جہاں قرآن نازل ہوا، اور یہی وہ بابرکت سرزمین بنی جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی پر اترنے والی وہ آخری کتاب نازل ہوئی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ عرب ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلتی پھیلتی پوری دنیا تک پھیل گئی، اور اس نے اسلام کے نور سے کرۂ ارض کو ایسا منور کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم نبی آخر الزمان کے کلمہ گو ہیں۔ یہی وہ مکہ شہر تھا جہاں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر موجود تھا، جس کی طرف دنیا بھر سے اربوں مسلمان رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہی وہ خانہ کعبہ ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج و عمرہ کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میدان عرفات میں امیر و غریب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں کسی بھی قسم کا فرق روا نہیں رکھا جاتا، اور سارے کے سارے لوگ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یوں عرب میدان عرفات میں امیر و غریب ایک ساتھ اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یوں عرب اسلام کی عظمت کا پہلا مرکز اور دنیا کے لیے ہدایت کا اسلام کی عظمت کا پہلا مرکز بن جاتا ہے اور دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عرب کیسا تھا؟ اس کی سرزمین، اس کی بستیاں، اس کے دریا، اس کی ندیاں، اس کی نہریں، اس کے صحرا، اس کے جنگلات کیسے اور کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے۔ بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ اگر آپ ایشیا کا نقشہ دیکھیں تو وہاں ایک جزیرہ نما خطہ نظر آتا ہے آپ کو۔ اس جزیرے کو جزیرہ عرب یا پھر عربستان کہا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج عرب اور خلیج عمان واقع ہیں، جنوب میں بحیرہ عرب یعنی بحر ہند واقع ہے، اس کے مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہے، اس کے شمال کی طرف اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو اس طرف آپ کو عراق کا ملک نظر آتا ہے، اور اسی عراق کے ساتھ نقشے پر آپ کو جارڈن یعنی اردن کا ملک بھی واضح نظر آتا ہے۔ اس جزیرہ نما عرب کا کل رقبہ تقریباً 12,50,000 مربع بتایا جاتا ہے۔ اس 12,50,000 وسیع و عریض رقبے پر 4.5 لاکھ مربع میل پر صرف اور صرف صحرا پھیلا ہوا ہے، یعنی ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، اور یہ سارے کا سارا خطہ انتہائی خشک ہے، یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آتا۔ اگر ہم عرب کے مشہور صحراؤں کی بات کریں تو ہمیں سب سے نمایاں ربع الخالی نظر آتا ہے۔ اس صحرا کو ایمپٹی کوارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ کوارٹر ہوتا ہے چوتھا حصہ اور ایمپٹی ہوتا ہے خالی، یعنی خالی چوتھا حصہ، اور یہ صحرا تقریباً 2.5 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عرب کے درمیانی
अंदरूनी हिस्से से जनूब मशरक की तरफ फैला हुआ एक बहुत बड़ा सहरा है। इस सहरा के शुमाल में अल अहसा या फिर बहरीन का इलाका शामिल है। इसके जनूब और मशरक की तरफ मुल्क ओमान वाक़या है और इसे खलीजे अरब के किनारे पर दुनिया के मशहूर ममालिक जिसमें अबू धाबी, दुबई, मस्कत वगैरह बहुत बड़े अमीर मुल्क हैं मुसलमान दुनिया के। इसी रबाउल खाली के जनूब में हिजर मौत और महरा के इलाके वाक़या हैं। यह बुहिरे अरब और बहरे हिंद के साहिलों पर आबाद है। ये सारे के सारे इलाके। सना यमन का मशहूर शहर था उस वक्त भी और आज भी यमन का दारुल हुकूमत सना शहर को ही कहा जाता है। इस्लाम की आमद से पहले यमन का ये जो सना शहर है, यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में ईसाई आबाद होते थे और ये ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मरकज था। रबाउल खाली के मगरिब में असीरा और नजरान के इलाके वाक़या हैं और ये इलाके बुहिरे अहमर के करीब करीब वाक़या थे। उसैर के शुमाल में बुहिरे अहमर एक छोटे से इलाके तक फैला हुआ था और इस इलाके को उस वक्त तुहामा कहा जाता था और यही तुहामा पहले नजद का इलाका समझा जाता था। इसी रबाउल खाली के शुमाल में नजद का इलाका वाक़या है और ये नजद जो है ये मुरब्बा शक्ल का एक इलाका था। अगर आप इसको मैप के ऊपर देखें तो आपको बिल्कुल एक स्क्वायर सी फीलिंग आती है। इसके मशरक में मुल्क बहरीन वाक़या है और इसके मगरिब में मशहूर खित्ता हज्जाज था। इसके शुमाल में इराक और शाम के बहुत बड़े बड़े सहरा मौजूद थे। इसी नजद के शुमाल और मशरकी इलाके को उस वक्त यमामा कहा जाता था। नजद के मगरिब में और बुहिरा अहमर के मशरक में मशहूर इलाका यानी हज्जाज का इलाका वाक़या था और यही हज्जाज है जिस इलाके में उस वक्त मक्का और मदीना जैसे अजीम शहर भी शामिल थे और यही वो इलाका था जिसमें उस वक्त की जद्दा और जुम्बे की अहम बंदरगाहें भी मौजूद थी। शाम और हज्जाज के दरमियान में खैबर और हजर के इलाके शामिल थे। ये वही खैबर है जिसको 7 हिजरी में मुसलमानों ने फतह किया था और हजरत अली अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जंगजू साबित हुए थे इसमें। अब आपको एक ऐसे इलाके के बारे में मैं बताता हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा और इस इलाके का नाम है अल अहकाफ। रबाउल खाली के अंदर हजर मौत और यमामा के दरमियान में एक मशहूर मगर वीरान तरीन इलाका था और इसी इलाके को अल अहकाफ कहा जाता था और यही वो अल अहकाफ का इलाका है जहाँ कदीम कौम आद रिहाइश पजीर थी। ये कौम आद का इलाका कहलाता था और यूं अरब का जुग्राफिया सहराओं, मैदानों, साहिली इलाकों और बड़े बड़े सहराओं में मुनकसिम था और अरब में चूंकि पानी नहीं था इसीलिए यहाँ पे कोई ऐसा दरिया भी मौजूद नहीं था जिसको हम काबिल जिक्र दरिया कहें। ये पूरे का पूरा मुल्क गर्म सहरा और बंजर जमीन के अलावा बेआबो गया वादियों पर मुश्तमिल था और ज्यादातर आबादियां और इलाके समंदरों के किनारे या फिर छोटी छोटी चरागाहों के किनारे आबाद हुआ करते थे और इसी पानी की कमी की वजह से इसी अरब के अंदरूनी इलाकों में आबादी इंतहाई मुश्किल हो गई थी क्योंकि जाहिर है इंसान को रहने के लिए पानी और खुराक वाफिर मिकदार में चाहिए होता है। तो वहाँ पे चूंकि पानी मौजूद नहीं था तो जहाँ पानी नहीं होता वहाँ हरियाली भी नहीं होती, वहाँ जानवरों के लिए घास फूस और चारे की सहूलत भी नहीं होती। तो इसलिए अरब के अंदर यानी अंदरूनी अरब में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। लेकिन इसके बावजूद भी नजद में फिर भी इस तरह की कुछ सहूलियात मौजूद थी। ये जो नजद का इलाका है ना, ये रबाउल खाली के शुमाल में और अरब के अंदरूनी हिस्से में एक सतह मुर्तफा का इलाका कहलाता है। ताहम यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है कि ये जो नजद का बिश्तर इलाका है ये भी सहरा पर मुश्तमिल था और ये नजद का सहरा इतना लंबा चौड़ा था कि ये फैलता फैलता मुल्क के शाम के किनारों तक जाकर टच होता था। इसके अलावा अरब के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ भी मौजूद थे, लेकिन ये पहाड़ अमूमी तौर पर ऐसे पहाड़ नहीं थे जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामाबाद, मरी और KPK के इलाकों में सरसब्ज और शादाब पहाड़ हैं। ये पहाड़ ऐसे पहाड़ थे कि इनको देख के डर लगता है। बिल्कुल खाली सुर्ख कलर के और बिल्कुल सब्जा नाम की तो कोई चीज वहाँ पे नजर ही नहीं आती थी। यमन और हज्जाज के इलाके जो बुहिरा अहमर के साहिल पर आबाद थे, ये अरब के दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा सरसब्ज और थोड़ा बहुत पानी कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाता होता था। उस वक्त के अरब की आबादी तकरीबन 1,25,00,000 नफूस पर मुश्तमिल थी, यानी औसतन हर मुरब्बा मील पर तकरीबन 10 अफराद आबाद थे। और ये सारी बातें तारीख इस्लाम अकबर शाह नजीब आबादी की किताब वॉल्यूम नंबर 1 के सफा नंबर 46 पे लिखे हुए हैं, यानी पेज नंबर 46
6 पे अरब की कौमें या अरब का जुग्राफिया अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। अरब का सूरज इंतहाई गर्म था और वहां बहुत गर्म लू चलती थी और यही गर्म हवाएं और यही गर्म धूप इंसानी जिंदगी को इस खित्ते में सख्त तरीन बना देती है। और कुछ तो ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि ये गर्मी और ये धूप इतनी तेज थी कि सहरा का मखसूस जानवर यानी कैमल या जिसे आप ऊंट कहते हैं, इस गर्मी की शिद्दत में ये भी हलाक हो जाते थे। ऐसे माहौल में ऊंट जैसी सवारी जो कम पानी पिए जिंदा रह सकती है, ये बहुत बड़ा जरिया था और यही वो ऊंट है जिसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है। दूर दराज के इलाकों में ये अरब जब सफर करते थे तो इनका जो सबसे बड़ा जरिया होता था सफर करने का, ये ऊंट ही होता था। इस ऊंट को ये मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, जिसमें साहिबा, लामा या ऊंट भी कहा जाता था। और ये ऊंट उन इलाकों में सफर करते थे जिन इलाकों में कई 100 मील तक पानी का नामो निशान ही नजर नहीं आता। और ये ऊंट ही थे जिन्होंने ऐसे हालात में इंसान को दूर दराज तक सफर करने के काबिल बनाया था। और अगर हम खुराक की बात करें तो अरब में सिर्फ चंद ही चीजें थी जो बड़ी नुमाया होती थी। इन लोगों की खुराक में खजूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में ज्यादातर खजूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साहिली इलाकों में जहाँ पानी मौजूद होता है वहाँ इनको कभी कभार मछली भी मिल जाती और ये मछली का गोश्त भी खा लेते होते थे। इसी अरब की ज्यादातर आबादी खाना बदोश कबाइल पर मुश्तमिल थी और इसीलिए ज्यादातर आबादी शहरों से बाहर हमें नजर आती है। इस अरब के खित्ते में ज्यादातर बड़े शहर हमें नहीं नजर आते। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये था उस जजीरा नुमा अरब का वो जुग्राफिया जिसको हमने मुकम्मल तफसील से बयान किया है। एक ऐसी सरजमीन जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल था, एक ऐसा खित्ता जहाँ पानी न होने के बराबर है, जिंदगी इंतहाई मुश्किल है और सफर करना उससे भी ज्यादा अजाब नजर आता है। लेकिन फिर वो वक्त आया कि यही अरब, यही मक्का, यही मदीना इस्लाम के मराकज़ बनते हुए हमें नजर आते हैं। और यही वो सरजमीन है जहाँ कुरान नाजिल हुआ था और यही वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम फैलता हुआ पूरी दुनिया तक फैल गया।